Very good morning students, सुप्रभात सभी को. Today we are going to start a new chapter that is confronting marginalization. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि marginalization क्या होता है और किन दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को ज़्यादा marginalize होना पड़ा है या वो हो गई हैं बहुत सारे कारणों की वजह से. तो इस चैप्टर में हमने देखना है कि कैसे हम लड़ सकते हैं, कन्फ्रंट कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं मार्जिनलाइजेशन का, और ऐसे कौन से लॉज हमने बनाए हैं या हमें और बनाने हैं which can help us in confronting marginalization. So, fighting marginalization में first of all we must understand that we have two groups of people who have experienced inequality and discrimination. Such groups have fought, protested and struggled against being excluded or dominated by others. They have attempted to overcome the situation by adopting to a range of strategies like religious solace, armed struggle, self-improvement, education, economic uplift. तो बहुत सारे तरीके अपनाने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा और जो मार्जिनलाइज हैं from themselves so that their lives can be uplifted. So if we talk about how to confront marginalization, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वोकिंग आर फंडामेंटल राइट्स. जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं वो हम सभी नागरिकों को इंक्लूडिंग द मार्जिनलाइज उनको प्रोवाइड कराएं, एनफोर्स करें कि फंडामेंटल राइट्स सबको इक्वली मिल रहे हैं. ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली. द marginalized people have forced the government to recognize the injustice done to them. marginalized people ने जो injustice उनके साथ हुआ है उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है सरकार के लिए. They have insisted government to recognize the injustice done to them, and if you recognize the injustice then you will take steps to resolve the problem. Article 17 of the Constitution states that untouchability has been abolished. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 17 जिसने कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो कुप्रथा है उसको दूर किया. If we talk about Article 17 and Article 15 of the Indian Constitution, Article 17 of the Indian Constitution states that untouchability has been abolished. This means that no one can prevent Dalits or anybody else from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. Article 15 of the Indian Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex, etc. तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. If we further talk about a poem by सोयराबाई, तो सोयराबाई ने एक कविता लिखी है, आइए उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं. A body is unclean, they say. Only the soul is untainted, but the impurity of the body is born within the body. By which ritual does the body? अब कह रहे हैं कि जो सोल है वो प्योर है पर कुछ लोगों का जो शरीर है वो इम्प्योर है. तो किस रिचुअल से जो इम्प्योरिटी है शरीर की उसको दूर किया जा सकता है? सोयराबाई का सवाल है सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों से. नॉट अ क्रीचर हैज बीन बोर्न एक्सेप्ट इन द ब्लडी वॉर्म. आगे सोयराबाई कह रहे हैं This is the glory of God. Defilement exists within. The body is polluted from within. Be sure of it, says the Mahari Choka. ये जो पोयम है, ये जो कविता है, that is a question, that is a large question not of only सोयराबाई but a large number of people who are being discriminated, जिनके खिलाफ भेदभाव होता आया है हमारे जो आज़ादी है उससे पहले और उससे भी जो बहुत पहले जो समय था जिसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए और उनको सो कॉल्ड अपर कास्ट में कैटेगराइज कर दिया गया. उन सभी के तरफ से सवाल है. सोयराबाई इज क्वेश्चनिंग द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड आर्ग्यूइंग दैट सिंस एवरी ह्यूमन इज बोर्न इन द सेम मैनर there is nothing that makes one body less or more pure than other. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे एक बॉडी ज़्यादा प्योर है और एक कम. लॉज फॉर द मार्जिनलाइज की अगर हम बात करें,
फर्दर तो द गवर्नमेंट मेक लॉज टू प्रोटेक्ट ऑल सिटीजन्स, सरकार जो है वो सभी नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाती है। येट देर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज इन अवर कंट्री, तो मार्जिनलाइज को बचाने के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस लाइक सब्सिडीज एंड फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर दलित्स एंड आदिवासी कम्युनिटीज, तो कानून बनाने के साथ साथ सरकार समय समय पे सब्सिडीज देती है, आर्थिक सहायता देती है और फ्री में भी सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके लिए, ताकि उनकी शिक्षा में कोई भी बाधा ना आए। सो लॉज फॉर द मार्जिनलाइज में एक और तरीके की असिस्टेंस देने का प्रयास किया गया है मार्जिनलाइज को, जो कि है रिजर्वेशन का, जो कि एडमिशन्स में और एजुकेशन के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कोई मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे देश के, उनमें आरक्षण, इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें भी रिजर्वेशन मिला हुआ है एससीज और एसटीज को। लॉज which reserve seats in education and government employment are based on equality of opportunities principle. Government also offers special scholarship for Dalit students and समय समय पे सरकार जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड या दलित्स जिनको आप कहते हैं और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनके लिए समय समय पे विशेष स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी निकालती है ताकि वो अपनी पढ़ाई को आगे परस्यू करें। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज में अब एक स्टोरी की बात करते हैं। जकमालगुर एक गांव है जिसमें ये जो फेस्टिवल है ये हर 5 साल में होता है और आसपास के जो प्रीस्ट हैं 20 गांव के जो पुजारी हैं उनको बुलाया जाता है और 5 दिन का ये पूरा इवेंट होता है। देन व्हाट हैपेंस इन दिस इवेंट? The ceremony begins with a member of the Dalit community washing the feet of all the priests and bathing in the water. तो ये जो सेरेमनी है जिसमें 20 प्रीस्ट को बुलाया जाता है उसमें जकमालगुर गांव के जो दलित हैं उनमें से एक व्यक्ति प्रीस्ट के पांव धोता है और उसके बाद उस पानी से नहाता है। देखिए कितनी इनह्यूमन प्रैक्टिस है और सो कॉल्ड जो अपनी प्राइड है उसको बनाए रखने के लिए और दलित्स को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए ऐसी प्रथा चली आ रही है। द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रत्नाम्स फैमिली। इससे पहले जो टास्क ये करता था व्यक्ति वो रत्नाम के फैमिली से था। उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर दोनों ने ही यह कार्य और उनकी जो पूर्वज हैं उन्होंने ये कार्य किया हुआ है। दो दे वर नेवर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, दिस रिचुअल वॉज व्यूड एज अ ग्रेट ऑनर बिस्टोर्ड ऑन देम ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। हालांकि उनको कभी मंदिर में नहीं जाने दिया पर इस रिचुअल को काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, सो कॉल्ड सम्मान, कि उनको ये मौका मिला है कि वो प्रीस्ट के पैर धोके और उसके बाद उस पानी से नहा रहे हैं। नाउ इट्स रत्नाम्स टर्न, ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। अब रत्नाम की बारी थी और रत्नाम जो है वो सिर्फ एक 20 वर्ष का बालक था, एक एडल्ट जो ओनली 20 ईयर्स का है। तो फिर वो क्या कर रहा है? ही वॉज स्टडिंग इंजीनियरिंग इन अ नियर बाय कॉलेज, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है पास के कॉलेज में। बट ही रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिचुअल, पर वो मना कर देता है कि मैं ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं करूँगा। He said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual. उसको इस रिचुअल में ऐसे किसी भी प्रथा में विश्वास नहीं है और उसके फैमिली मेंबर से भी जबरदस्ती यह कार्य करवाया गया इतने सालों तक। रत्नाम्स रिफ्यूजल एंगर्ड बोथ द पावरफुल इन द विलेज एंड सम फैमिलीज फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी। इस कार्य ने, जिसमें रत्नाम मना कर देता है उस रिचुअल को करने से, उनके पैरों को धोके उस पानी से नहाने से, इससे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो तो एनॉय होते ही हैं, गुस्सा होते ही हैं। इसके साथ साथ रत्नाम की कम्युनिटी की भी कुछ फैमिलीज उससे गुस्सा हो जाती हैं। तो वो क्यों गुस्सा हो रही हैं? क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। उनकी क्या मजबूरी है? द पावरफुल कास्ट वर शॉक्ड दैट अ यंग बॉय हैज गट्स टू रिफ्यूज। तो सबसे पहले तो पावरफुल कास्ट की बात करेंगे जिसमें वो गुस्सा हो जाते हैं और वो चौंक जाते हैं कि एक इतना जो जवान लड़का है जिसने अभी दुनिया में ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं है, उस पर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने जो कई सौ सालों से जो रिचुअल चल रहा है उसको मना कर दिया।
They believe it was Ratnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them. उनको लगा कि ये रत्नाम ने जो शिक्षा प्राप्त की है, जो ये कॉलेज में जा रहा है, इसकी वजह से इसने इतनी हिम्मत इसमें आ गई है कि ये अपने आप को हमसे, अपर कास्ट के लोगों से कंपेयर कर रहा है. द पीपल फ्रॉम रत्नाम्स ओन कास्ट वर फेयरफुल ऑफ एंगरिंग द पावरफुल. और रत्नाम की खुद की कास्ट के लोग भी, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, वो भी डर रहे थे, गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं उनको. क्यों? बिकॉज मैनी ऑफ देम वर्कड ऑन देयर फील्ड्स एज डेली वेज लेबरर्स. उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिच और पावरफुल जो कास्ट हैं उनके यहाँ उनके खेतों में काम करते हैं. And if the dominant caste decides not to call them, then what would they earn? How would they survive? और अगर जो dominant caste है, जो powerful caste हैं, जो so called upper caste हैं, अगर वो उनको नहीं बुलाएंगे खेतों में काम करने, तो वो कैसे जिंदा रहेंगे? They also declared that the wrath of the local deity would strike them if they refused to give in. उन्होंने ये भी देखा कि जो local deity हैं, उनके जो प्रकोप है वो भी उन पर पड़ेगा अगर वो इस रिचुअल को करने से मना करेंगे. प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज में आगे देखेंगे कि रत्नाम की स्टोरी में क्या हुआ. रत्नाम आर्ग्यूड दैट गिवन दैट नॉट अ सिंगल दलित हैड एवर एंटर्ड द टेंपल, हाउ कुड द डीटी बी एंग्री विद देम. रत्नाम ने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि जब कोई दलित मंदिर में गया ही नहीं तो कैसे देवता जो हैं वो उनसे गुस्सा हो सकते हैं. द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच रत्नाम अ लेसन. जो पावरफुल कास्ट थी उन्होंने रत्नाम को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया. His community was ordered to ostracize him and his family. इसकी कम्युनिटी से उसकी फैमिली को अलग करने के लिए बोला. उनके ऊपर ये फोर्स किया गया उस कम्युनिटी पे कि वो रत्नाम की फैमिली से ना ही बोले, ना ही कोई बात करे, ना ही उनकी किसी भी काम में मदद करे और उनको अलग थलग कर दें ताकि वो मजबूर हो जाए इस रिचुअल को करने के लिए और इन बातों को मानने के लिए. Some men have entered the hut and set it on fire. रत्नाम का जो घर है कुछ लोग उसमें घुस गए और उन्होंने उस घर पे आग लगा दी. He managed to escape with his mother. पर वो अपनी माँ के साथ उस दुर्घटना से बच जाता है और उससे बचकर निकल जाता है. रत्नाम went to file a case in the local police station under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. रत्नाम जो है वो उसने जो कानून बनाया गया है एससीज और एसटी के प्रोटेक्शन के लिए, जिसका नाम है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उसके अकॉर्डिंग उसने एफआईआर दर्ज कराई उन लोगों पे जिन्होंने उसके घर पे आग लगाई थी. द केस वॉज पिक्ड अप बाय द लोकल मीडिया एंड लेड टू मैनी जर्नलिस्ट विजिटिंग द विलेज. धीरे धीरे जो केस है वो लोकल मीडिया में फैल जाता है और बहुत सारे जर्नलिस्ट रत्नाम और उसकी फैमिली का इंटरव्यू लेने गांव में आते हैं. द रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ बट हिज फैमिली वॉज फोर्स टू मूव आउट ऑफ द विलेज. तो इतने प्रेशर के बाद, इतना मीडिया में केस आने के बाद ये जो रिचुअल है इसको बंद कर दिया जाता है. पर फिर भी रत्नाम के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं था और रत्नाम को जो अपना गांव है, जो अपना घर है, वो छोड़कर कहीं और रहने जाना पड़ता है. तो ये रियलिटी है हमारे सिस्टम की, जिसमें ऐसा अक्सर ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं. हम इतने एडवांस ज़माने में 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हम बात करते हैं विकास की और हम इतनी छोटी छोटी बेसिक जो कुप्रथाएं हैं उनको भी हटा नहीं पा रहे हैं. सो मूविंग ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट है, वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नेम द एक्ट विच प्रोटेक्ट द एससीज एंड एसटीज फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. कौन सा कानून बनाया गया है उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, सो कॉल्ड लोअर कास्ट या दलित लोगों को, और एससीज और एसटीज का एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए. विच लॉ हैज बीन फॉर्म्ड. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स इक्वालिटी. कैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, यानी कि वो किस किस प्रकार की बात कर रहे हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीइंग ऑस्ट्रिसाइज्ड. ऑस्ट्रिसाइज्ड का क्या मतलब होता है. Question number 4, what steps are taken by the government to promote equality and prevent exploitation of marginalized. क्या क्या स्टेप्स सरकार ने लिए हैं जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट करने के लिए और जो एक्सप्लॉयटेशन है मार्जिनलाइज का उसको
रोकने के लिए. So I hope you understood all topics well. If the video was informative, please like it. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest informative and educational videos. Thank you and have a nice day.